السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے فیکٹر افیکٹنگ آف انزائم ورکنگ، کہ فیکٹر افیکٹنگ آف انزائم کیسے ورک کرتے ہیں۔ تو ہمارا چیپٹر جو ہے چیپٹر نمبر 2 چل رہا ہے انزائم، اس کا ہمارا ٹاپک ہے فیکٹر افیکٹنگ آف انزائم ورکنگ۔ The rate of enzyme activity means the quantity of substrate molecules. The quantity of substrate molecules is produced in a unit time is called factor affecting enzyme working. مطلب یہ کہ کوئی بھی سبسٹریٹ مالیکیول جب پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتا ہے ان a unit time پر اسے ہم فیکٹر افیکٹنگ آف انزائم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں۔ ٹیمپریچر جو انزائمز کا ہے اس میں کیا رول پلے کرتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے، یہ ہر انزائمز کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا اسپیسیفک ٹیمپریچر ہوتا ہے جس پر کیا انزائمز اپنا ورک شو کرتا ہے۔ ایسے ٹیمپریچر کو ہم انزائم ٹیمپریچر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ہے آپٹیمم ٹیمپریچر کے بارے میں۔ آپٹیمم ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے؟ آپٹیمم ٹیمپریچر کی جو میں نے ڈیفینیشن یہاں پر لکھی ہے، میں نے لکھا ہے آپٹیمم ٹیمپریچر از دیٹ ٹیمپریچر آف انزائم دیٹ ٹیمپریچر ایٹ وچ انزائمز شو دیئر میکسیمم فنکشننگ از کالڈ آپٹیمم ٹیمپریچر۔ آپٹیمم ٹیمپریچر انزائمز کا وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، آپٹیمم ٹیمپریچر انزائمز کا وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں انزائم جو ہے میکسیمم فنکشننگ کو شو کرتا ہے، اپنی میکسیمم سب سے زیادہ فنکشننگ کو شو کرتا ہے۔ ایسے ٹیمپریچر کو آپٹیمم ٹیمپریچر کہتے ہیں۔ ایک ہر انزائم کی جو آپٹیمم ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو آپٹیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے ہر انزائم کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم آپٹیمم ٹیمپریچر کہتے ہیں، میکسیمم ٹیمپریچر کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہیومن باڈی کے اندر جو ہے میکسیمم ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے۔ تو ہماری باڈی کے اندر ہیومن باڈی کے اندر جو ہے 37.38 یہ ویلیو جو ہے فیڈرل بک کے اندر دی ہوئی ہے، اور جو یہ میں نے سیکنڈ ویلیو لکھی ہے 40 ٹیمپریچر، یہ ہماری کیپی کے بک کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ دونوں ویلیو جو ہے آپ کو یاد رکھنی ہے، جو بھی ایم سی کیوز میں قریب ہوں گے اس میں ایم سی کیوز میں آپ ٹک کر سکتے ہیں۔ تو فیڈرل بک میں لکھا ہوا ہے 37.38 جو ہے ہماری جو ہے باڈی کے اندر ٹیمپریچر ہوتا ہے آپٹیمم ٹیمپریچر، اور جو کیپی کے بک کے اندر لکھا ہوا ہے وہ 40 ٹیمپریچر لکھا ہوا ہے۔ تو دونوں ویلیو کو آپ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں، آرسینک شوفلیا انزائمز ایک ایسے انزائمز ہیں جو کہ -10 ڈگری پر اپنی ورکنگ کو شو کرتے ہیں، مطلب اتنی کم ڈگری پر اپنی ورکنگ کو کیا کرتے ہیں، شو کرتے ہیں۔ ایسے انزائمز بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ہے تھرموفائلک بیکٹیریا۔ تھرموفائلک بیکٹیریا ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ 70 ڈگری یا 90 ڈگری پر اپنی ورکنگ کو شو کرتے ہیں۔ اب 70 ڈگری جو ہے یہ ہماری فیڈرل بک کے اندر ویلیو لکھی ہوئی تھی اور موجود ہے، اور یہ 90 ڈگری میں نے یہاں لکھی ہے یہ ہماری کیپی کے بک کے اندر موجود ہے۔ تو دونوں ویلیو کو آپ یاد رکھنی ہے، جو بھی ایم سی کیوز ان دونوں کے قریب ہو اس کو آپ کو ٹک کرنا ہے۔ یہ تھرموفائلک بیکٹیریا ہوتے ہیں جو 70 ڈگری پر بھی اپنی ورکنگ کو شو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک ایم سی کیوز میں آپ کو کراتا ہوں۔ ایم سی کیوز امپورٹنٹ ایم سی کیوز آپ کی فیڈرل بک کے اندر دیا ہوا ہے کہ جو کسی بھی انزائم کی ہم 10 ڈگری کو انکریز کرتے ہیں، کسی بھی انزائم کی ہم 10 ڈگری ٹیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں تو اس کے جو ریٹ آف ریئیکشن ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کے پاس ایم سی کیوز آتا ہے کہ ہم کسی بھی انزائم کی ریٹ آف ریئیکشن کو کیا کرتے ہیں 10 ٹیمپریچر انکریز کرتے ہیں تو ریٹ آف ریئیکشن کیا ہوگا، ڈبل ہوگا، سنگل ہوگا، ہاف ہو جائے گا۔ تو اس کے حساب سے آپ کو کیا کرنا ہے، ڈبل ہو جائے گا۔ اگر کسی بھی ٹیمپریچر کی 10 ٹیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں تو ریٹ آف ریئیکشن کا ڈبل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں، ڈائیگرام میں نے یہاں بنائی ہے، یہاں پہ میں نے ریٹ آف ریئیکشن لکھا ہے اور یہاں پہ میں نے ٹیمپریچر لکھا ہے۔ یہاں پہ میں نے ریٹ آف ریئیکشن لکھا ہے اور یہاں پہ میں نے ٹیمپریچر لکھا ہے۔ اب جیسے ہی ہم ٹیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں
तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। एक मैक्सिमम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। इसे मैं दोबारा बता देता हूँ। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, किसी भी एंजाइम के हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर तक इंक्रीज होता रहता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये डिक्रीज होने लगता है। क्यों डिक्रीज होने लगता है, हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज होते रहते हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, वो भी इंक्रीज होते रहते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो उनके पास सॉल्यूशन होते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो उनके पास सॉल्यूशन होते हैं, अफेक्टिव सॉल्यूशन, वो क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करते हैं और अपने रिएक्शन को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। इसी तरह से ये जो है रिएक्शन होता है। इस ग्राफ को आपको समझना है। इसी ग्राफ के मुताबिक जो है एमसीक्यूज भी आते हैं बहुत सारे। इसके बाद हम आते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर पर। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर एंजाइम, मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर एंजाइम की बात होती है या कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है, मतलब गिरने लग जाती है। जहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है या एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है, एंजाइम के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, दूसरा होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं या फिर डीनेचर हो जाते हैं। ऐसे टेम्परेचर को मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं मिनिमम टेम्परेचर की तरफ। ये मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, एंजाइम का मिनिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें इनएक्टिव फॉर्म से कन्वर्ट होकर एक्टिव फॉर्म में एंजाइम कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर को ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। हमने जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन भी देख ली, मैक्सिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन को भी देख लिया और मिनिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन को भी देख लिया। इन तीनों डेफिनेशन को आपको ध्यान में बिठाना है। कहीं भी एमसीक्यूज आ सकते हैं और सवाल भी आ सकते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं एक एंजाइम, मैंने लिखा है जो है पेपायन। पेपायन एक एंजाइम से ग्रीन पेपाया से लिया गया है और इसकी एक खूबी है जो ये एक्टिव एसिडिक की तरह काम करता है और अल्कोलाइन की तरह भी काम करता है। दोनों तरह की इसकी खूबियाँ होती है, दोनों तरह ये काम करता है। इस टॉपिक को हम पीएच वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। जो हमारी पीएच क्या होती है, पीएच हमारी बॉडी में कितनी होती है, पीएच जो है हमारी बॉडी के अंदर 7.8 या 7 होती है या 8 होती है, दोनों होती है। ये हमारी जो है ये वैल्यू 7 जो हमारी पीएच है, ये हमारी फेडरल बुक के अंदर मौजूद है, ये लिखी हुई है वैल्यू। तो ये 8 पीएच मैंने लिखी है, ये हमारी केपी के बुक के अंदर मौजूद है। दोनों वैल्यू को आप याद रखना है, जो इसके करीब हो उस पर आपको टिक करना है। अगर 7 वैल्यू दी गई तो ज़्यादा आपको क्या है 7 को टिक करना होगा, अगर 7 वैल्यू नहीं दिया तो 8 को टिक करना होगा। दोनों वैल्यू क्या है, सही है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर मैंने 3 पीएच बनाई हैं ग्राफ के अंदर। ग्राफ को हम देखते हैं, जो ऐसे एंजाइम जो कि 2 pH पर अपनी वर्किंग को शो करते हैं, ऐसे एंजाइम जो है हमारे पास पेप्सिन हमारे पास जो एंजाइम्स है ये क्या होते हैं, ये हमारे पास 2 pH पर अपनी वर्किंग को शो करते हैं। इसकी जो मैक्सिमम pH होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास 2 होती है। तो पेप्सिन जो होते हैं वो 2 pH पर अपनी वर्किंग को शो करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड में हमारे पास 7 pH है, 7 pH का हमारे पास कैटालाइसिस है।
कैटालाइसिस जो एंजाइम्स है वो हमारे 7 pH पर अपनी वर्किंग को शो करते हैं। उनकी जो मैक्सिमम pH होती है वो हमारे पास 7 होती है। एक और एंजाइम होता है जो कि 7 pH पर वर्किंग करता है, यूराएज भी एक एंजाइम है जो कि 7 pH पर अपनी वर्किंग को शो करता है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो 9 pH पर अपनी वर्किंग को शो करते हैं। उसमें जो एंजाइम्स हमारे पास आते हैं आर्जिनेज एंजाइम्स जो है हमारे पास आते हैं 9 pH पर जो है अपनी वर्किंग को शो करते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने डायग्राम ग्राफ बनाया है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑप्टिमम pH लिखी है। जब हम pH को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। उसके बाद जो ऑप्टिमम pH तक जो है बढ़ता है, उसके ज़्यादा हम अगर बढ़ाएंगे तो pH क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। इसी तरह टेम्परेचर की तरह भी यही टेम्परेचर का ग्राफ भी ऐसे ही होता है। जब उसको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। उसके बाद हमारे पास प्रोटेस जो एंजाइम्स है ये हमारे पास 1 pH पर अपनी वर्किंग को शो करते हैं। वैसे भी 1 pH पर अपनी ऑप्टिमम जो pH होती है वो 1 होती है। 1 तक अपनी pH तक जो है वर्किंग pH होती है। उनके बाद जो हम उसकी pH को बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एंजाइम्स को। एक और एंजाइम मैंने लिखा है ट्राइपेसिन एंजाइम। ट्राइपेसिन एंजाइम क्या होता है? ये ट्राइपेसिन एक एंजाइम दैट एक्ट इन अल्कोलाइन मीडियम। ये पेप्टाइड की तरह ये भी अल्कोलाइन मीडियम में हमारे पास वर्किंग करता है और इसकी जो pH होती है वो हमारे पास 8 होती है। ये 8 pH पर अपनी वर्किंग को शो करता है। इसी तरह से ये सारे डायग्राम आपको समझनी है। इसी हवाले से हमारे पास एमसीक्यूज भी आते हैं। ये एंटीकैट और बोर्ड के एग्जाम में हमें ग्राफ दिया जाता है और इस ग्राफ के मुताबिक हमें एमसीक्यूज को टिक करना होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स और जो मैंने पढ़ा है ये सब कुछ आपको ध्यान में बिठाना है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है।